Now let's do a question of interest on debentures with TDS, that is tax deducted at source. Okay. XYZ Limited issued 1,05,000 debentures of face value of 10 each at rupees 12. Means issue is at premium. Okay. Face value is given to you 10. Premium is given to you. Face value is given to you as 10. Then premium is given to you 2 rupees. And so it is issue price is total 12 rupees. The interest was payable at the end of the financial year. TDS also deducted at the end of the financial year. मतलब एनुअल इंटरेस्ट है और TDS भी डिडक्ट करना है. Past necessary journal entries. Now my first question to you is the interest to be charged on face value or on the amount including premium, that is 12 rupees. देखते हैं फेस वैल्यू कितना होगा. 1 लाख डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो कितना होगा? दैट कम्स अप टू 10 lakhs. ओके, 10 lakhs है. और यदि हम प्रीमियम का अमाउंट 2 रुपीज एड करेंगे तो मेरा क्वेश्चन है कि 12 रुपीज पे आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. दैट इज 12 इंटू 1 लाख 12 lakhs और 10 इंटू 1 लाख 10 lakhs. So the answer is interest is always charged on the total amount calculated at face value, that is number of debentures into face value. So 10 lakhs पे आप हमेशा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एंड 10 lakhs पे कितना परसेंट रेट है? 5% डिबेंचर्स है. सो 10 lakhs इंटू 5% एनुअल इंटरेस्ट है. सो 5% ऑफ 10 lakhs विल बी 50,000. So 50,000 is your interest amount. Now since nothing is given in the question on TDS, कितना परसेंट TDS काटना है, so I assume it, you can write it in the working note that we are assuming it कि TDS कितना है? 10%. So टोटल 50,000 इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, उसमें से 10% TDS काटा जाएगा. That is 5,000 will be deducted as TDS and total payment will be done of 45,000. That is 50,000 minus 5,000 का payment. Okay. So the first entry for debenture interest being due. So debenture interest account debit. To debenture holders account. अब एक और चीज, to TDS, that is tax deducted at source, means सारा का सारा इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करके टैक्स जितना कंपनी अपने पास रखेगी एंड एट द लेटर स्टेज गवर्नमेंट को पे करेगी. So what was the total debenture interest calculated on face value? That is 50,000. So debenture interest account debit 50,000 to debenture holders. क्या 50,000 पूरा debenture holders को दे दिया जाएगा? No, the payment is only of 45,000. So debenture holders को 45,000 आप देंगे. To TDS, tax deducted at source, that is 5,000. Being debenture interest due for payment. अब आपने ड्यू कर ही दिया है, सो यू विल पे इट ऑल्सो. और साल में एक ही बार है, सो दीज एंट्रीज यू आर डूइंग एट द end of the financial year. So entry number 2, end of the financial year, क्या होगा? डिबेंचर होल्डर को पेमेंट होगा. So डिबेंचर होल्डर 45,000 से है.
डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, $45,000 to bank. Being debenture interest paid to debenture holder. $45,000. Now the third entry. Entry for TDS, for payment of TDS. So TDS account debit, जिसको क्रेडिट किया था आपने 5,000 से. So TDS account debit 5,000 and now you are paying it to the government. So TDS account debit to bank 5,000. Being amount paid to government. Being एक्चुअल में टैक्स डिडक्टेड पेड टू गवर्नमेंट. एक बार टैक्स काट लिया, उसके बाद उसको गवर्नमेंट को एक फिक्स पीरियड के बीच में पे करना नेसेसरी है. ओके, द कंपनी कैन नॉट डिडक्ट टैक्स एंड कीप इट विद अस. इट इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, सो यू हैव टू पे इट टू द गवर्नमेंट. एक ही बार एंट्री करेंगे इसकी, साल में एक ही बार आप टीडीएस की एंट्री करोगे इन क्वेश्चंस. एक्चुअली इन द ट्रू पिक्चर टीडीएस की डेट्स होती हैं एंड एज द गवर्नमेंट सजेस्ट उन डेट्स पे आपको टीडीएस का पेमेंट करना होता है गवर्नमेंट को. नाउ नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल एंट्री किस चीज की है? वो एंट्री कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डिबेंचर इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे. सो द फाइनल एंट्री जो भी एक ही बार की जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट. टोटल इंटरेस्ट कितना था? 50,000. सो 50,000. अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों गया? डिबेंचर इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट. दैट इज, पहले आपको चाहे प्रॉफिट है, चाहे लॉस है, चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, दैट डजंट मैटर, आपको ये इंटरेस्ट जो है वो पे करना ही पड़ेगा. बिकॉज डिबेंचर आर इशूड टू आउटसाइडर्स और उनको इंटरेस्ट का पेमेंट कंपलसरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट वेदर देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट्स और लॉस. सो एज इट इज चार्ज टू प्रॉफिट, you have to debit it to statement to profit and loss account. Hope it is clear.